أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. My most favorite verses. The Prophet Muhammad, peace and blessings upon him, said, indeed, your Lord has a right over you. Your sin has a right over you. And your family has a right over you. So, give each their due rights. This hadith directly talks about balancing multiple responsibilities. Slightly matches our theme, balancing diverse professions, and shows the Islamic concept of distinction, giving every role وما علينا إلا البلاغ. Jazakallah for the beautiful narration. May I request everyone to kindly rise for the national anthem. Please be seated. And now, my favorite part. It's not every day that you get to introduce someone you personally admire. Our guest speaker, Mr. Umair Khanana, is someone who effortlessly blends intellect with artistry. He was also appointed as CLF Goodwill Ambassador by the Children's Literature Festival in 2019, a beautiful extension of his work outside of performance. And for many of us, he is a familiar and admired presence on screen as well. Starting from my personal favorites, they now meet Tulani, thank you. Sange Marmar, and of course, Pyar Ke Sadke, Alvin. The
sure many of you will agree with today. But most importantly, he represents exactly what we are here to understand: how to live multiple passions without losing yourself in the process. Now, I can see there's a quiet anticipation in the room, and honestly, it wouldn't be kind of me to let my face stay any longer between you and someone you'll all truly want to see. So before I overstay my moment on this stage, let's move on to the one you have been waiting for. Ladies and gentlemen, please put your hands together for someone who inspires both on and off the stage, Mr. Umair Tahir Ahmed. Thank you. Assalamu alaikum. Can you guys hear me clearly? आवाज आ रही है आप सबको? Especially the back benches. Yeah? Can you hear me? अच्छा, आज I really wanted to come and talk to you guys. फिर वो इजराइल और अमेरिका ने सोचा नाइंसाफी और बढ़ा दें. कॉलेज बंद हो गए. आप लोगों के साथ इंसाफ हो गया. बाकी लोगों के साथ नाइंसाफी हो गई. And I really wanted to address you guys. लेकिन जब से सिलसिला शुरू हुआ था, I really wanted to, and this is what is going to be the case today. मेरी ख्वाहिश ये रही है कि आप बात करें, मैं सुनूं. So I want the agenda to be yours. I want to hear you. मैं सुनना चाहता हूं कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, किस चीज़ की तलब है. So great part of the conversation जो आज हमारी होगी, वो मैंने दरख्वास्त यही की थी कि आप लोग सवाल पूछें और मैं जवाब दूं. मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, सवाल जो है has to come from a true place of curiosity, a place of genuine curiosity, genuine learning, and I would love to answer those questions. सिर्फ ये मेरी शर्त है, and I'm sure काफी खुली शर्त मैंने आप लोगों को दे दी है, कोई स्पेसिफिक नहीं दी है. लेकिन just before I can set the tone, I just pray to God कि जो लफ्ज निकलने आसान निकले, helps you. I'm only going to set the tone basically this. First of all, a great gratitude for everyone to have arranged this. Thank you very much. Thank you very much for that flattering introduction. Dr. Mam, I would like you to come to my obituary as well and make announcements and speeches. जो एक मौजू है, उसके अंदर मिसाल के तौर पे हमने एक रंग बना दिया, which is the multiple things one can do. And I know how the generations currently work, and they would like to work on multiple things at the same time. मेरे साथ एक बड़ा अच्छा सवाल होता था, and I'm talking about जब मेरे बाल कम ग्रे थे, क्योंकि हमेशा ग्रे थे. तो जब कम ग्रे थे तो लोग पूछते थे, राणा साहब असल में आप करते क्या हैं? मैं कहा जी मैं थिएटर करता हूँ. तो नहीं असल में क्या करते हैं आप? ये एक सवाल होता था. And this is when I had my own theater production company. Alhamdulillah, I have around 60 theater productions under my belt. And I genuinely believe theater has been one of the best things that has ever happened to me in my life. शर्त यह है कि जो भी काम करें नियत सही होनी चाहिए. I genuinely thought, and I still believe, theater has been jihad on nafs. And this is where I want to start off with. My own story, and I want to bring it down to this. Mukhtasaran, 48 years, I'm going to condense it as much as I can. Yeah, I'm 48. So 48 years, I'm going to condense as much as I can. I was born in a simple, small, middle-class family, Pakistani, obviously. But I was born in Alain, UAE. छोटा सा एक पिंड है, वो भी पिंड है. And my father, who's actually Gurdaspuri, Lalpuri, Lahori, and then more Emirati than anything else. Alhamdulillah, is still there. Please pray for him always. My mother, जो कि पुराने लाहौरी सैयद है, but raised in Karachi. A weird combination. Raised in UAE. हम सिर्फ दो भाई हैं. मैं छोटा, ओवैस मुझसे बड़ा. और मैं हमेशा एक वो था ना, छोटे भाई को कहते हैं ये बड़ा शरारती होगा, always get things away, right? I was the exception. So I wasn't that. I was the one who's always the meek, quiet, जो कि हमेशा जो कहा जाए करें. भाई को अगर डांट पड़ी है या मार पड़ी है तो आधा खून मेरा वैसे खून होते हैं. और वो अलग बात है कभी कभार राजपूत जाग जाते हैं, but I'm the चांद वाला. Why I'm telling you this is in reflection, because अब मैं खुद भी एक बाप हूं. In reflection, maturity came when I could look inside. एक बुलीड चाइल्ड जिसके क्लास में सारे अंग्रेज बच्चे या इमराती कम थे, बट
अरब बच्चे एंड व्हाट नॉट, दुनिया भर के लोग आए हुए। अफगानी मेरा दोस्त था, फ्रेंच दोस्त था। नॉट मेनी पीपल न्यू आई एग्जिस्टेड इन द क्लास, सो आई वाज दैट चाइल्ड। आपको लगता होगा कि यार ये बड़े फ्लैम्बॉयंट, अच्छा ये वो शरारती, वो है ना ड्रामा करता है। नो, आई वॉज द एब्सोल्यूट ऑपोजिट एंड आई एम नॉट द ओनली वन। हमारे इंडस्ट्री में इतने अच्छे अदाकार हैं, मर्द और औरत दोनों, जो कि इसी तरह के, एंड दे लाइक मी फाउंड अ वॉइस। मेरे आयरिश प्रिंसिपल मिस्टर क्रॉफर्ड ने स्कूल में कहा था कि जुमेरात की जुमेरात कोई ना कोई स्कूल के क्लास के बच्चे क्लासेस इकट्ठे होके कोई ना कोई थिएटर का स्केच जरूर करेंगे, प्रैक्टिस करें, रिहर्स करें, प्रेजेंट करें, हमारे सामने, बाकी स्कूल के सामने और पेरेंट्स के सामने। छोटा सा स्कूल था, इससे छोटा हॉल था, सारे इसमें जमा होते थे, एंड वी हैड टू डू इट। तो आई हैड टू डू इट, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, आई हैड टू डू इट एंड आई एम ग्लैड आई हैड टू डू इट। आई एम रियली ग्लैड। उस वक्त तो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अलायन से दुबई गए, दुबई में अगेन मैं अकेला एंड अगेन सिमटा हुआ। वन टीचर मिस्टर केल्विन केट्सबी, एक अंग्रेज टीचर ने एक्चुअली बिकेम माई मेंटोर। बहुत सालों बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई और हमारे एक आई शेयर दिस पर्सनल एस्पेक्ट, क्लास 4 में उन्होंने एक थीम रखी हुई थी। उस वक्त रेड इंडियन कहते थे, अब पॉलिटिकली इनकरेक्ट है तो नेटिव अमेरिकन कहते हैं, तो रेड इंडियन थीम थी। उन्होंने कहा हर बच्चे की पर्सनालिटी के मुताबिक मैं उसको एक रेड इंडियन नेम दूंगा। तो मेरे साथ मिसाल के तौर पर एक सूडानीज लड़का था, गोल मुंह, बड़ी बड़ी गोल आंखें, हमेशा मुस्कुराता था। उसका नाम उन्होंने रखा स्माइलिंग मून फेस। मेरा उन्होंने नाम रखा गैलपिंग पोनी। इतफा उन्होंने मुझे बुलाया टेबल पे, क्लास काम कर रही थी। उन्होंने कहा उमर प्राइवेटली, डू यू नो व्हाई आई नेम्ड यू गैलपिंग पोनी? आई सेड नो, बिकॉज आई थिंक देयर इज समथिंग इनसाइड यू वेटिंग टू गो आउट. It's a pony galloping, struggling. That's the kind of talk a mentor gave to me. That was the moment I decided मैंने बड़े होके teach जरूर करना है. That is the moment because he altered my life. I still get emotional thinking about it. That was the power. करते कराते class 5 Dubai college theater classes शुरू कर दी. Finally, theater gave me the voice. Theater gave me the opportunity कि मैं एक mask पहन के कोई और बन के confident हो सकता हूँ. Eventually came to Lahore in the first Gulf War, 1991. I can't believe I'm saying first because second भी हुआ है, अब third भी so to speak हो रहा है. And I came here, लाहौर में ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल था. डॉक्टर खलील रहमान हमारे प्रिंसिपल थे, बड़े ही सख्त थे. प्रिंसिपल के ऑफिस के करीब जाना हमारी कांपे टांगती थी. लेकिन उन्होंने कहा था एक डिबेट आ रही है और तुमने एक दफा वॉलंटरली एक स्पीच की थी क्लास स्कूल के सामने, तो तुम डिबेट करो. तो मैं कहा ठीक है सर. फ्लैटरी इज अ फाइन आर्ट. जी सर. तुम फोर जाओगे अगेंस्ट? महा फोर जा रही है सर. आई गो अगेंस्ट सर. आई गो फोर सर. वो अगेंस्ट जा रही है. तुम्हें पता फ्लैटरी क्या है? यस सर. ओके जाओ स्पीच लिख के आओ. बाहर गया, सबसे पहले मैं डिक्शनरी खोली, फ्लैटरी होती क्या है. आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ चाइल्ड. थैंक्स टू अनदर मेंटोर, रुबीना, मिस रुबीना सहगल, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए. She held my hand. She wrote my script. She helped me rehearse it. उन्होंने मुझे समझाया. She became a director of a play जिसमें उन्होंने मुझे क्लास 8 में असिस्टेंट डायरेक्टर ले लिया. She gave me that confidence. मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ? It's because I'm really grateful for my mentors, my teachers, my faculty, and for the opportunities जो कि मुझे नामुमकिन लगती थी कि यार ये पहाड़ कौन करेगा, मैं नहीं कर सकता, मैं वो बच्चा हूँ, छोड़ो रहने दो. But they encouraged me to do it, and in the process they made me who I am. And then eventually, I won that debate, by the way. Eventually, cutting it way forward, not far from here, Bloomfield Online University College Lahore खोला था, and I became the head boy of that. I was in the lead debating team. I got a first role of honor in drama over there. I am in front of you now, speaking publicly, doing theater, and then taught drama, introduced O-level drama to Pakistan. और उस वक्त मुझे ख्याल आया कि why theater, why drama? और मैं ये आपको कहानी सुनाना चाह रहा हूँ. This is where I really want to bridge it towards you. मैंने इसको जहाद नफ्स का है, and I mean it, and I genuinely mean it. ऑगस्टो बोल नाम का एक उस्ताद था जिसने थिएटर किया था in Brazil during the oppressed times. और उसने कहा था कि थिएटर जो जुबान है ये एक ऐसी जुबान है जिसमें आप बर वक्त यक वक्त
अमल भी कर रहे होते हैं और अपने ऊपर रिफ्लेक्ट भी कर रहे होते हैं. He said, he coined this term, you are both a spectator and an actor. You are a spectator. So and I thought, where in my values, that my belief is where you act and you think about what you're acting at the same time, is jihad al-nafs. You reflect at the same time. I can give you a good lecture and I'll give you a simple hint. Professor Howard from Harvard University, इन्होंने multiple intelligence निकाली थी, multiple intelligence theory, कि हम सब में 8 इंटेलिजेंसेस उन्होंने निकाली थी, अब 9 हो गई. 8 इंटेलिजेंसेस आइडेंटिफाई हुई थी, हम सब में यक वक्त ये सारी इंटेलिजेंसेस मौजूद है. वी नीड टू डिसाइड कौन सी किस हद तक है. वी आर नॉट जस्ट ग्रेट इन लैंग्वेज और ग्रेट इन मैथ्स, जो कि टिपिकल हमें सिखाया जाता है आईक्यू टेस्ट. नहीं, हमें से बहुत हैं जो कि बोल नहीं सकते लेकिन स्पोर्ट्स कमाल करते हैं, क्राफ्ट्समैन है. हमें से बहुत ऐसे हैं जो नाच बड़ा अच्छा सकते हैं, राइट, दे कैन मूव बेटर. हमें से बहुत ऐसे हैं जो मुझसे कई गुना बेहतर गाना गा सकते हैं, रियाज कर सकते हैं. सो आर यू ट्राइंग टू टेल मी बिकॉज उनको रियाजी नहीं आती लेकिन रियाज आता है तो दे नॉट इंटेलिजेंट? ऑफ कोर्स नॉट. उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को जरा आप सामने लेके आए, उन्होंने कहा सर जी जरा अंग्रेजी पढ़ के दिखाएं. ही कांट, बट उनकी तरह कोई गा के तो दिखाए ना, कोई म्यूजिक सोच के दिखाए, कोई ला के तो दिखाए. नहीं, यू कांट. सो दे आर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस वी ऑल होल्ड. I would like you to look it up at your own time and see what it is. रोक मैं कहाँ रहा हूं? I discovered दुबई कॉलेज में when I was in class 6, वहां से शुरू होता है. दुबई कॉलेज में English, Maths and Theatre was compulsory. मुझे तो बड़ा पसंद था, लेकिन जिनको नहीं पसंद था, जो इंजीनियर बन रहे थे या डॉक्टर बन रहे थे, यार ये थिएटर जरूरी है. उन्होंने 2 चीजें की हैं. एक, उन्होंने दिखाया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के जरिए इफ यू आर वर्ड इंटेलिजेंट, यानी कि आपको स्क्रिप्ट पढ़नी है, उसको समझना है, देन यूज इट. इफ यूर बॉडी इंटेलिजेंट, यानी कि आप मूव कर सकते हैं, देन यूज इट. इफ यूर साउंड इंटेलिजेंट, इफ यूर विजुअल इंटेलिजेंस, इफ यूर इंटरपर्सनल स्किल इंटेलिजेंस, इफ यूर इंट्रापर्सनल स्किल इंटेलिजेंस, इफ यूर स्पेस इंटेलिजेंस, नेचर इंटेलिजेंट, यूज इट. एंड दिस इज होल ह्यूमैनिटी. और दूसरी बात, I recently did a TEDx talk and I said art is not optional. And I want to stop at this, and this is very crucial to you guys. Very crucial. हमें बचपन से, and मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस गलत है, हमें ये गलत सिखाया गया कि it's either science or arts. ये गलत है. कोविड याद है? लॉकडाउन हुआ था, आपके इर्द गिर्द, आपके इंक्लूडेड, कोविड में आप लोगों ने क्या किया था? हांडी पकाना सीख ली, राइट? कुछ यार ड्रॉ करना सीख लेते हैं, कोई पॉटरी सीख लेते हैं, कुछ नहीं तो नेटफ्लिक्स लगा लेते हैं, कोई किताब पढ़ लेते हैं, कुछ लिखना शुरू कर दें. व्हाई वर वी डूइंग दैट? हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी टू सर्वाइव, कि यार क्या है ये डिजीज, क्वारंटीन किस तरह करना है, दवाइयां कौन सी लेंगे, किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, वैक्सीन आ रही है नहीं आ रही, कब आएगी, कौन सी लगानी. वी नीडेड इंफॉर्मेशन टू सर्वाइव, बट वी नीड ऑल दीज क्रिएटिव थिंग्स टू एग्जिस्ट. ये हमारी मेंटल सैनिटी के लिए है. डू नॉट टेक ह्यूमैनिटी अवे फ्रॉम एनीथिंग, स्पेशली द प्रोफेशंस दैट यू गाइज आर गेटिंग इनटू. डू नॉट टेक ह्यूमैनिटी अवे फ्रॉम इट. द ग्रेटेस्ट डॉक्टर्स आई हैव मेट इन माई लाइफ are not the ones who were the top in their class in academics, were the ones who were reading random fiction books, listening to music, drawing, sketching. Amongst the greatest engineers and lawyers I've met are those who paint beautifully. They're brilliant. क्योंकि उनकी इंसानियत जिंदा है. Keep the human alive. Art is not a subject. Art is a function of humanity. ये याद रखिएगा. उसके आखिरी मिसाल मैं आपको देता हूं. मैं भी रिसेंटली गया था जिंदगी ट्रस्ट. आर यू फेमिलियर विद जिंदगी ट्रस्ट? शहजाद रॉय साहब ने और उनकी बेगम ने भी, they've adopted certain schools and colleges and they're doing a phenomenal job. Public school. उनके मैं आर्ट रूम में गया, उनकी आर्ट की हेड से मुलाकात हुई. Wonderful young lady. She'd be very happy I called her young. और उन्होंने भी वही किया जो इंडस हॉस्पिटल कराची में मैंने पहली दफा देखा था, जो मैंने और बहुत जगहों पे देखा है, ऑटिज्म स्कूल्स में देखा है, is when you have a mental issue, a trauma, a depressive state, anything, and I mean not in the colloquial sense, but in the medical sense, they use art. Art to express themselves, art to communicate. Sensitive issues addressed by art.
मुझे कोई बताएं, किसी ने कहा है कि मैंने केमिकल बना के एक्सप्रेस किया अपने आप को? मैंने एक डाइसेक्शन करके अपने आप को एक्सप्रेस किया, अल्लाह ना करे। दे यूज आर्ट, सम फॉर्म ऑफ आर्ट। कोई शायरी लिखता है, कोई पेंट करता है, कोई स्कल्पचर बनाता है, कोई नाचता गाता है, कोई कुछ करता है। दे परफॉर्म। दिस इज द ह्यूमन लैंग्वेज। सो अमंग्स ऑल अदर थिंग्स आई डिड वांट टू, मेरा ये एक वाहिद एजेंडा था, उसके अलावा मेरा एजेंडा खत्म हुआ। अब मेरा एजेंडा, जैसे मैंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप पूछें, मैं नाचूं, राइट जी, एज लॉन्ग एज इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ जेन्युइन क्यूरियोसिटी। थैंक यू। अपना तारुफ प्लीज करा दीजिएगा। ओके सर, मेरा नाम साद है। साथ थोड़ा खड़ा हो जाएंगे ताकि बाकी देख ले, मेरे लिए तो ठीक है। ओके, सो मेरा नाम साद है और मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ और मैंने एनसीसी और पीएमयू से मैंने विजुअल आर्ट में डिग्री ली थी। मेरा आपसे ये पूछना है कि आपको इतना अर्सा हो गया है, आप थिएटर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो एंड नाउ इन 2026 हम बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो थिएटर एजुकेशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? थिएटर एजुकेशन को हमारे टाइम में ऐसा कैसे बन सकता है और आप थिएटर को एज एन आर्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Thank you, son. Let me try to give it as brief a reply as I can. मैंने जब थिएटर इंट्रोड्यूस किया था तो मुझे लगा हाथों हाथ सारे लेंगे, और नहीं हुआ। तो फिर मुझे इसी तरह एक ऑडिटोरियम में जाके पेरेंट्स को थिएटर बेचना पड़ा। आई वाज सरप्राइज्ड। स्ट्रेटेजिकली मैंने सोचा था कि क्योंकि लड़कों के स्कूल में थिएटर वुड नॉट बी पॉपुलर, क्योंकि यार ऐसे कुड़ियां दा काम है। आई एम सॉरी बट दैट इज द, आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट। गर्ल्स स्कूल वुड बी बेटर, इट बी अ गुड segue. And then I brought it to LGS Johor Town as well, boys school as well. लेकिन उसमें पेरेंट्स को मैंने दो टोक सवाल पूछे थे कि आप बच्चियों को क्लास 8 में खोपे लगा के स्ट्रीम्स में डाल रहे हैं, बिजनेस स्कूल, मेडिकल स्कूल एटसेट्रा, तो आपकी क्राइटेरिया क्या है टू चूज कि बच्चे को कहाँ डालना है? तो एंड आई सेड दिस अर्लियर एज वेल के काफी तकरीबन कंप्लीटली ऑनेस्ट थे, लेकिन बड़े डायरेक्ट थे। और जी अच्छा ओ लेवल रिजल्ट, अच्छा ए लेवल रिजल्ट, ए लेवल भी जाएंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। मैंने कहा उसके आगे क्या है? मैंने कहा जी क्या मतलब? मैंने कहा जी आप पूरा सच बोले ना, नौकरी पे छोड़ दिया आपने। मैंने कहा जी अच्छे रिश्ते आएंगे। विच इज अ फैक्ट। आवर सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली ऑपरेट्स स्टिल लाइक दैट, विच अप्लाइज टू बोथ मेन एंड वुमेन। वुमेन की जी लड़की ने क्या पढ़ा है? गोल रोटी बनानी आनी चाहिए, लेकिन पढ़ा क्या है? Right? Why so many female qualified doctors are not practicing? Right? क्या पढ़ा है? Medicine, brilliant, excellent. लड़के ने क्या किया? Engineering, very good, excellent. लड़की ने क्या किया जी वो engineer, okay, typical careers. लड़का क्या करता है जी? O level ड्रामा पढ़ाता है, जी कोई और नहीं गाता रिकॉल। So unfortunately we decide our children's future not according to उनकी बेहतरी क्या है या इस सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर सकते। हम ये देखते हैं कि इनके रिश्ते आसान होंगे क्या, एंड दैट इज नॉट द राइट वे टू इट। एजुकेशन हमारे यहाँ वोकेशनल हो गई है। हमारे जो असल इल्म था वो ये नहीं था, ये अंग्रेज के आने के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हुआ, उससे पहले नहीं था। सो थिएटर पढ़ाने का फिर मैंने कहा ठीक है, इन्हीं की जुबान में मैं इनको बेचता हूँ, और मैंने यही उनको कहा कि आप जो मर्जी करें, जस्ट ऐड थिएटर टू इट, दिल बी बेटर इंजीनियर्स, दिल बी बेटर डॉक्टर्स, विच इज अ फैक्ट। इसमें कोई झूठ भी नहीं है, कोई ऐप भी नहीं है, बट दे डिस्कवर देमसेल्व्स एंड दैट दे मस्ट डू। सो दैट इज माई बेसिक पिच। अब मैं ये जरूर कहता हूं, पहले था कि यार एकेडमिक्स में होगा, यानी कि सब्जेक्ट मजमून होगा जिसका टेस्ट और रिजल्ट होगा, जिसको अब हमारा माइंडसेट हो गया, तो फिर वो ले लेंगे। मैं तो कहता हूं नहीं, इसको ऐड ऑन करेगा। यू शुड हैव अ मॉड्यूल ऑफ थिएटर। मेरा बेटा इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की डिग्री कर रहा है। दे हैव अ बिग स्कूल ऑफ थिएटर इन दैट कॉलेज बिकॉज दे अंडरस्टैंड। मैंने अभी रिसेंटली लम्स MBA को एक्टिंग फॉर मैनेजर्स पढ़ाया बिकॉज दे अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ इट। तो उनको उस तरह भी समझ में आ गई। यू मस्ट डू दैट एट योर ओन सेल्फ, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। जी, एनीथिंग एल्स? एक सवाल उधर पीछे, मेरे ख्याल से बीबी उधर है। इसके बाद मेरे ख्याल से शायद आपके पास माइक आ जाएगा। वालेकुम सलाम। लग रहे हैं आप? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक ड्रामे की कामयाबी में OST का कितना हाथ है और आप किस बेस पे म्यूजिक को चेक करते हो? तेरा मेरा है प्यार। सॉरी आपका नाम मैं भूल गया इस गाने में। फहद, राइट?
फाद दो लेवल्स पे जवाब मैं देना पसंद करूंगा. पहली बात सतही लेवल पे, विच इज अ फैक्ट. यस, म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ मार्केटिंग टूल. बॉलीवुड में भी मार्केटिंग की बजट से म्यूजिक बनता था, और फिल्म की लॉन्च से पहले अभी भी आप नोट करें गाने रिलीज होते हैं. सो इट्स अ मार्केटिंग टूल. सो हमारे यहाँ भी अगर कोई फिल्म अच्छी बन जाए तो उसमें मार्केटिंग गाना निकालने की कोशिश करते हैं इफ पॉसिबल. तो ड्रामे अब ये डेफिनेटली इस्तेमाल कर रहे हैं. सो उसके सक्सेस में हिस्सा बनता जरूर है. दैट्स व्हाई दे पुट अ बिग बजट इन दैट, यू नो. दूसरी लेवल पे ये तो सतही हो गया. अब वो हो ना हो वो अलग बात है. फिर उसकी वो रेड मार देते हैं चला चला के, वो एक अलग बात है. ठीक है, जैसे चिंगम की तरह एपिसोड्स खींचना शुरू कर देते हैं, कामयाब हो गया, वो अलग बात है. सतही तौर पे तो हमने बात कर दी. गहराई में यहां पे मैं कहना चाहूंगा, देखिए घूम फिर के मैं लेके आ रहा हूं. म्यूजिक इज द मोस्ट आर्केक फॉर्म ऑफ आर्ट. साउंड समात जो है हमारी नफ्स के सबसे करीब है. द रीजन वाई, आई मीन अगर फिलोसॉफिकली देखा जाए एक अलग बात है, रिलीजियसली देखा जाए एक अलग बात है कि आवाज कितनी इंपॉर्टेंट है वगैरह, क्यों हमें जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि एसनल बयान यानी कि हम बयान करने के लहजे में बेहतरीन, तो लिहाजा हमें जिम्मेदारी दी गई. बट मैं आपको मोस्ट बेसिक देता हूं. व्हेन अ ह्यूमन फीटस इज बोर्न, व्हाट इज द फर्स्ट सेंस दैट अ ह्यूमन फीटस गेट्स? साउंड. एंड व्हाट्स द फर्स्ट साउंड्स यू प्रोबब्ली थिंक? जस्ट इमेजिन कि आप एक फीटस हैं, यू आर सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर फ्लूइड, और साउंड इज द फर्स्ट सेंस यू गेट. ये बहुत जोर की मैं स्ट्रेस कर रहा हूं, बिकॉज को सेंस क्यों कहते हैं? वी वांट टू मेक सेंस ऑफ द यूनिवर्स, वी यूज आवर सेंसेस, राइट, समझने के लिए. साउंड्स क्या आ रही हैं? अम्मी की बातें, आवाजें खास तौर पे होंगी, मां की आवाज, एम्बियंस की आवाज, और एक आवाज जो कि कांस्टेंट होगी, राइट, धप 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 धप, हार्ट बीट. नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि जब डफ बजता है, ढोल बजता है, रॉक एंड रोल होता है, ट्रांस होता है, धमाल होता है, दे आर ऑल ऑन द सेम तर्ज, धप 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 धप. तभी मैडम नूरजहां ने कहा था कि बंदा बेसुरा होवे तो ठीक है, पर बेताल होवे नु जून दा हक नहीं है. So music is that close to us. And alhamdulillah, us as a society, no matter what has happened, people have used my faith against it for music. But we still have stayed true to the humanity of what God has given us. जो हज़रत दाऊद अलैहि सलाम को भी दिया था, is music. We are still true to it. कि music affects us and we let it affect us. But the question is, what music are you choosing? That is the only question, right? So मैं मिसाल के तौर पे बेटी को कहता हूँ ये क्या फजूल जो के पॉप शेप पॉप काइंड आता है, मैं कहता ठीक है, इट एग्जिस्ट्स, लेकिन उसको अपने तर्ज में देखो, राइट? सो टेलर स्विफ्ट इज टेलर स्विफ्ट, बट टेलर स्विफ्ट इज नो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान. वो एक अलग चीज है, राइट? दैट्स अनदर थिंग. इट्स नॉट इकबाल बानोजी, इट्स नॉट दैट, एंड नॉट नेसेसरली इन दिस लैंग्वेज. आप अंग्रेजी में ले लें या रशियन में ले लें, दिस म्यूजिक व्हिच इज अमेजिंग. मोजार्ट इज समथिंग एल्स. एक आखिरी मिसाल आपको देता हूं, देन आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक जापानीज साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था कि म्यूजिक का आपके ऊपर असर क्या होता है. बड़ी पतली सी एक रिसर्च पेपर है, और उसके आखिरी लाइन जो था ना, वाज द मोस्ट पावरफुल एक्सपेरिमेंट. उसने क्या किया? ही वुड हैव ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जिसमें पानी फ्रीज हो रहा है एंड लेटिंग इट ड्रिप डाउन टू आइसिकल्स, और हर उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक एनवायरनमेंट में फ्ला म्यूजिक चल रहा है, एक एनवायरनमेंट में फ्ला म्यूजिक चल रहा है, और हर म्यूजिक के हिसाब से वो आइसिकल्स बन रहे हैं. आइसिकल्स को काट के वो देखता था माइक्रोस्कोप में कि इनके मोलेकुलर स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट फॉर्म्स डू दे मेक, लाइक स्नोफ्लेक्स. हर एक रैंडम जैगेड किस्म के स्नोफ्लेक्स है, एक्सेप्ट ऑल काइंड्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. उसमें यूनिफॉर्मिटी थी, स्टेडीनेस. दैट्स व्हाट यू डिस्कवर्ड. आखिरी लाइन क्या थी? ह्यूमन बीइंग्स आर 60% वाटर. नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक इज ऑन वाटर. क्यों रूह की हो जाए. सो देयरफॉर गहरे जवाब पे मैंने ज्यादा वक्त दिया. But Sada, you understand itself. Ji, we have a question back there. My name is Nanda and I'm from the Department of Medical Lab Technology. Sir, मेरा सवाल ये था that you have talked about different disciplines at particular time. So you have been doing work in this different disciplines. There must be a time when you get frustrated and you want to give up.
at the very moment, what was your motivation to keep it up? That's my question as well. Yes, question. What is the motivation to keep it up? Thank you. Yeah. Sorry, मैंने आपका नाम सही तरह नहीं सुना. Leon. Liana? Leon. Leon. Yes. Thank you. Thank you, Leon. There's not been one moment, there have been multiple moments. And I know there will be another moment in the future as well. And जब आप कह रही हैं, मैं साथ साथ सोच रहा हूं कौन कौन से मौके थे. One of the darkest times in that sense was I was fired. I was fired from a school from an admin point. मेरा बेटा 1 साल का था. So I'm talking about 17 years ago, or maybe more, 18 years ago. Yeah, 18 years ago. Ryan अभी 1 साल का होने वाला था. So 17, 18 years ago. And उस वक्त I was going through serious personal issues at home, domestic. बेगम मेरी newborn child. यहाँ ईडन कनाल विलास में रहते थे. सोचे उस वक्त ईडन कनाल विलास. और उठ के पुआ के जिन्हों कहते ने असी गए all the way to the other side of the city. उस वक्त रिंग रोड नहीं बना हुआ था, एयर एवेन्यू की तरफ. Toughest times. Had to pay 2 rents, domestic issues. बेगम बच्चा और मैं और अम्मी मेरी यहाँ. So a lot of family issues. And I got fired. उसी में मेरा क्रेडिट कार्ड उस वक्त किसी बात में पता चला रिश्तेदार ने चोरी किया और इस्तेमाल किया. 80,000 रुपए का, पैसे भी नहीं. Real tough times. And I thought, what do I do now? God bless my wife, one of the greatest assets in my life, if not the greatest asset in my life. She sat me down, she said, देखो, खुदा की तरफ से हुआ है, तुम चाह रहे थे ना, he's shut all doors, you have to do this. This क्या था? Introduce O-level drama to Pakistan. So I took that as an opportunity. मेरे पास कुछ है ही नहीं option. And I went school to school. मैं O-level drama पाकिस्तान में introduce करना चाह रहा हूँ. Would you like to be with? Would you like to be it? Would you like to be it? तब जाके मैंने O-level drama introduce किया. And I thought I'm just going to give up everything. But I got into teaching properly for the first time at that level. So पहले Kinnaid में था, whatever, but visiting faculty. And जब मैंने वो शुरू किया, I got more encouraged. मैंने कहा, you know what, मैं साथ साथ theatre production अपनी company मजीद बढ़ाऊँ. मैंने वो बढ़ाई. Then I got more encouraged. एक दोस्त ने कहा कि यार, why don't you start corporate training? Then I got into corporate training. फिर वो शुरू किया. Cut short, I've left teaching, I don't know, 10, 12 years ago. But I've been a corporate trainer. I'm a professional to be certified coach. I'm a consultant. I'm a professional actor. I have introduced O-level drama to Pakistan. I have been doing theatre. I'm getting back into theatre. And this is all because of that one horrible incident. Why am I saying that is, and I mean it, उस वक्त भी बहुत मुश्किल था. जब मुश्किलें आई हैं, बहुत मुश्किल था. लेकिन मुझे फिर 2010 में हज पे एक उस्ताद बन गए. I didn't know him. उन्होंने सैयद फ़ाखिर हसन शाह, फ़ाखिर भाई ने मुझे एक फ्रेमवर्क सिखाया और फिर मैंने सीखा. और फिर बाद में ज़िंदगी में एक और बड़े मुश्किल वक्त से गया. तो फिर बेगम नहीं कहा, कहते हैं 2 किस्म के वक्त होते हैं, एक शुक्र का होता है, एक सब्र का होता है. और जो उन्होंने मुझे सिखाया उसको फिर मैंने जब ज्वाइन किया, मैंने कहा यार मायरी, बेगम को मायरी कहता हूँ, मायरी यार, सब्र के वक्त से यू हैव टू गो थ्रू इट. लेकिन जब गुजर जाता है ना, नाउ यू हैव द चॉइस टू लुक बैक और गिला करना है, शिकवा करना है, या फिर उसका भी शुक्र अदा करना है. सो जैसे मैंने कहा कि आई एम हु आई एम बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैव गॉन थ्रू, इंक्लूडिंग दोज. सो आई स्लोली एंड स्टेडली स्टार्टेड लर्निंग इन लाइफ. यू गो थ्रू द टफ टाइम, फील इट, क्राई, वीप, शाउट, स्क्रीम, डू व्हाट यू हैव टू डू. लेकिन जब गुजर जाओगे ना, मुड़ के देखना, फिर चूज करना कि अभी भी उसका शिकवा करना है, गिला करना है, यार मेरे नाल क्यों है, या फिर आर यू गोइंग टू जेन्युइनली सी कि उसमें कोई फायदा हुआ है मुझे, और फायदा हुआ है. सो देयरफॉर आई लुक बैक और मैं उस सब्र के वक्त का भी शुक्र करता हूं. सो देयरफॉर दैट हैज हेल्प्ड मी इन लाइफ. एंड आई विश दैट समवन हैड सेड दिस टू मी एट दिस एज कि इट विल बी टफ, यू विल गो थ्रू टेरेबल टाइम्स, इट विल हर्ट. जब गुजर जाओगे, जब गुजरोगे, उसके बाद सोचना, उस वक्त ना सोचना, उस वक्त गो थ्रू इट. Because as I said earlier, if you don't, you will be in an actual depressive state. You have to accept it and go through it. I hope that sort of helps you Yeah, that answer is the my question. question as well. There you go. To tell the students just that how do you deal with such weak moments?
balancing everything, fighting to balance everything, academics, profession, because they are doing this. Yeah, in fact, I'll just say that in one single line. Ask your faculty members one day, मुझे छोड़ दो. Ask your faculty members one day कि अपनी CV दे. Please give us your CV. उन्होंने कहना ये वाली CV नहीं चाहिए. वो CV दे जहां जहां आपके failures थे. Faculty को assignment देनी है आप लोगों ने, ठीक है? And you should make a CV of all your failures and share it with the students. And then they'll realize, it's much more than the achievements you've got. And frankly, that is what has made them who they are. And that's what makes you who you are. That's what made me who I am. Just job applications की बात कर रहा हूँ. एक क्रॉसवर्ड पे था, शादी होनी है, बेरोजगार हूं. जॉब छोड़ दी है, शादी होने वाली है. अब मैंने इस्तिखारा भी निकाला. मैंने कहा अल्लाह मियां क्या करूं? तुसी दसो, तुसी वड्डे हो. Should I stay here and start theater? उस वक्त शुरू भी नहीं किया था. Or should I look for a job in Dubai? इशारा आया थिएटर करो यहाँ. मैं कहा नहीं अल्लाह मियां नहीं है, कोई और मशवरा दे. I went to Dubai. I got 2,500 job rejections. 2,500 job rejections in a month. Came back with my tail between my legs, with 5,000 rupees in my account, in a wedding about to happen. And got my first ever theater direction gig. खुद नहीं लिया, कहीं से आया है. मैं प्ले डायरेक्ट कर रहा हूँ. आजा. First ever. So are you telling me, जो कि मैं रो रहा था as an adult, I was crying in Dubai कि क्या हो रहा है? Rejection is not an easy thing to take. Okay? I was crying, but I came back. I was crying. I don't know what to do. Gloomiest times. But there you go. That's what's made us who we are. Right? Ji, Bibi. My name is Dinesh Hassan. I'm working here as manager admissions. First of all, I would like to welcome you here on behalf of Persia University. And it's a great pleasure to listen to your interesting and valuable insights. So I just have a question. You're working as director theatre. So taking this role, how do you prepare the actors for in order to handle complex, multi-purpose and diversified or emotional roles? Thank you, Dinesh ji. Thank you. It's been a long time I haven't properly directed a full theatre play, but the director is still alive. इसमें बहुत सारी complexities हो सकती हैं, लेकिन मुख्तसरन ये मेरा मोटो ये होता है from page to stage. तो कोई स्याही यहाँ लिखी है, उसको हमने अमली जामा पहनाना है. और ऑब्वियसली मेरे विजन के हिसाब से है, प्लस विद द विजन ऑफ द पीपल आई गेट ऑन बोर्ड, which includes actors, includes my artistic director, my set construction, my wardrobe managers, my sound engineers, my light engineers. इन सब की contribution मुझे चाहिए. मैं कहता हूँ मुझे इस तरह की कोई चीज चाहिए. And then they say कि how about this? How about this? They can even challenge it, but I want that because उनकी creative contribution अगर नहीं आ रही तो वो puppets है मेरे लिए. Actors की जहां आपने बात की है, actors are a very complex being and psychologically very sensitive also. So I'm an actor as well, so I can relate to that. So, and I would like to be an actor's director, which means I've had to train, और मैंने majority जो plays किए वो colleges के साथ किए. तो उस age में लड़के लड़कियों को अपनी self reflection, sensitivity, psychological vulnerability, etc. वो और empathize करना, ये की है. आर्ट आपको empathy पे लेके जाता है. empathize करना कि एक शख्स है, उसकी कैफियत क्या होगी, ये क्यों है ऐसा, why are they feeling the way they feel, ये बहुत अहम है. तो मेरी की यही होती है और हमेशा थी. तो मैंने थिएटर भी जब एजुकेशन के तौर पे डायरेक्शंस की हैं, तो मेरा मोटिव, एक मेजर मोटिव ये था कि यार किसी तरह एहसास बढ़े. क्योंकि जब आप एक दफा एक किरदार कर लेते ना, खा वो आपके वैल्यूज को कितने बरक्स हो, आपको एटलीस्ट एहसास शुरू हो जाता है कि यार ये शायद इसलिए ऐसे. आई गिव एन एग्जांपल. प्यार के सदके. How many of you seen प्यार के सदके? Horrible character. ऐसी गालियां पड़ी थी उसके बाद. शुक्र है कोविड हो गया था, वरना मुक्के भी पड़ते. बट मुझे जब वो कैरेक्टर पिच किया गया तो वो इतने भौंडे तरीके से पिच किया गया, मैंने कहा मैंने नहीं करना. Imagine the pitch was this. Just imagine. Because the marketing team, the production team did not know how to, वो धंधा कर रहे थे. उन्होंने कहा जी एक बंदा है
और वो अपनी बहू के ऊपर नजरें रखता है। मैं कहा क्या घटिया प्लॉट है, आई एम नॉट डूइंग दिस एंड यू वांट मी फॉर दैट बंदा। देन आई टॉक टू द डायरेक्टर, आई हैड नेवर मेट हिम, फारूक। फिर मैं देखा अतीका ओढो है इसमें, यमुना जैदी है, ये तो शरीफ लोग हैं, दे वुड नेवर बी पार्ट ऑफ सच अ प्रोजेक्ट। देन आई टॉक टू अतीका ओढो, मैं अतीका टेल मी मैं यू शुड डू इट, आई रिकमेंडेड यू। मैंने कहा यू श्योर, मुझे ये ब्रीफ बताई गई है। नहीं ऑफ कोर्स नॉट, फारूक है, तुमने फारूक के साथ काम किया? मैंने कहा नेवर। तो फारूक है, वो फारूक विल नेवर डू समथिंग। मैं कहा मैं अन्नेवा आ रहे हैं क्योंकि आई हैव टू शिफ्ट टू कराची, सो दिस इज माय फर्स्ट गिग आई एम टेकिंग। शी सेड या ट्रस्ट मी। आई सेड वेंट इन एंड लो एंड बिहोल्ड, पहला दिन बड़ा खौफनाक था, आई मस्ट कन्फेस, बट फारूक रिंज से जब मेरी बात हुई तो यही हुई। मैंने कहा ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, इट्स नॉट एज डिस्टेस्टफुल एज दैट, जस्टिफाई करें। He's a young, ambitious guy who's married his ex-boss's widow, Atika. Age difference, ambition. But he had already seen this girl and he kind of flipped for her. And circumstances have brought it such a way कि उसके stepson ने उससे शादी कर ली है. And now he's like, what the hell is this? So he wants to break it. And he's ambitious. अच्छा, ये brief है. Script माशाल्लाह थी, if you ask me. उसमें इतनी डिटेल नहीं है मेरे लिए. मैंने फिर बैक स्टोरी बनाई कि ये शख्स ऐसा क्यों होगा, एंड आई गिव यू अ ब्रीफ वर्जन ऑफ इट। मैंने कहा कि ये एक बहुत रईस अच्छे खानदान का था, हिज फादर वाज खानदानी रिच, लेकिन इसका बाप बहुत शरीफ था, इंतहाई सीधा, इंतहाई शरीफ, कि आर्टिस्ट को बिजनेस दे दिया, जैसे समझे, उसने डुबो दिया। उसकी बेगम जो थी, इसकी माँ, वो बड़ी खरांट थी, वो शी वाज शार्प अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। और अक्सर जो होता है, जब आमदनी ज्यादा हो तो बंदे के इम्तिहान है, आमदनी कम हो तो औरत का इम्तिहान है। जैसे आमदनी कम हुई, उसने कहा छुरी तेज करो, एनु ते ज़िबा करो। और वो जो शरीफ बाप था, भोला जा, वो दबाव में आके ही डाइड अर्ली। ये जो है, ही लव्ड हिज फादर। बट ईडिपस, इफ एनीवन नोस ईडिपस का क्या कॉन्सेप्ट है, माँ और बेटे का जो एक रिलेशनशिप है, साइकोलॉजिकल क्या कॉन्सेप्ट होता है, फ्रॉइड आप पढ़िएगा, यू फिगर इट आउट। ये उनके अंदर आ गया, और माँ ने समझे, सो टू स्पीक, कहा होगा कि यार या तो तुम इसकी तरह दुनिया में रहोगे तो तुम जलील होगे, या फिर मैं तुम्हें सिखाती हूं कि दुनिया में कामयाब कैसे होना। बिकॉज कम बैक टू द वेल्थ, जब कंफर्ट खो जाते हैं ना, यू डू समटाइम्स, सम पीपल डू एनीथिंग टू गेट बैक टू दैट कंफर्ट, ओके। और लिहाजा माँ बेटे का रिलेशनशिप। अब अगर प्यार के साथ, क्या आपको याद हो, माँ और बाप बेटे का 2 सीन थे पूरे ड्रामे में, हमने और लिखे, हमने और बनाए, हमने इस तर्ज पे बनाए, क्योंकि मैंने फारूक रिंज साहब को कहा, मैं फारूक भाई ये इस तरह मैं सोच रहा हूँ, अरे उमर भाई तो कमाल है, एंड ही एक्सपैंडेड ऑन दैट, आई एक्सपैंडेड ऑन इट, आई गॉट मोर एनकरेज्ड बाय दैट डायरेक्टर। सो आई अंडरस्टूड कि व्हाई वुड दिस गाय सरवर बी द वे ही इज, व्हाई वुड समवन सो शार्प एंड माइंड माय लैंग्वेज बट हरामी fall in love with someone so simple like Yumna's character, because he found the innocence in her, which maybe he loved when he was a child. He sees his own childhood innocence in her, and lihaza he's like, I want it. Or Sam ka beta hai, so why was he not affectionate towards his mother? Because he had resentments against her, कि तुमने मुझे ऐसा बनाया. So if you see the mother-son relationship, that's why it became what it became. All this because we worked as an art director and actor. How do you empathize with the character and then develop that character? So I'm giving you the answer from both aspects. Thank you. Ji, Sam. My name is Amar. I'm working as a lecturer by technology. So I just have a simple question. Do you think that acting is required in every profession? I would just like to quote here one of the students, one of my students came to me one day. And sir, मेरी ना तबीयत बहुत खराब है, मैं क्लास ही स्कूल में and not feeling very well. और उसने जो उसकी कंडीशन दिया है, just thought कि मेरी वापस से तबीयत बहुत खराब है, मैंने कहा चलें excuse में कर देता हूँ. Just after a while I went to the cafeteria and the student was playing snooker. अब मुझे देख के एकदम घबरा गया, तुमने तो कहा तुम्हारी तबीयत खराब है, what has happened now? सर मैं कुछ बेहतर फील कर, do you think sir थोड़ी सी एक्टिंग हर प्रोफेशन में कहीं ना कहीं होती है? पहले तो आप उसका जरा आइडेंटिफाई करें, इसकी कास्टिंग में शायद काम आ जाएगा, ना करेगा एक्चुअली, आई एम श्योर। इसलिए अच्छा, आपने जिस तरह एक्टिंग को डिफाइन किया ना, पहले तो मैं आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट एंड देन आई विल गो टू द अदर थिंग। मेरे भाई के मरहूम फादर इन लॉ मेजर जनरल कमाल रब्बानी,
जिनकी बीवी जो है शी इज द डॉटर ऑफ WZ अहमद साहब, हु वाज अ फेमस डायरेक्टर ऑफ हिज टाइम एंड प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर. कमाल अंकल hated acting and a man of very few words, but I really respected him. तो उन्होंने कहा एक्टिंग गलत चीज है. क्यों? झूठ है. और वो ऐसा मेरे दिमाग में बैठ गया, बात तो सही कर रहे हैं, एक्टिंग इज ऑल अबाउट लाइंग एट द एंड ऑफ द डे. वो कीड़ा दबा रहा. एंड देन इट टुक मी 12 years कि थिंकिंग कि यार मैं तो झूठ बोलता हूं. और बल्कि एक दफा ये हुआ कि बहुत बहुत पहले, मेरी शायद आखिरी ईदी मुझे मिली थी एज अ कमारा मैन. तो मैं जा रहा था कैंट में और मुझे रास्ते में नजर आया एक रेड़ा, टूटा हुआ पहिया निकला हुआ, बेरिंग्स निकली हुई उसकी, और फिर ट्विग्स रखी, और एक बंदा मिस्कीन सा शामी रोड पे यूं गुजरती गुजरती गाड़ी को शुम शुम जा रही है, हाथ जोड़ रहे. कम ट्रैफिक भी थी उस वक्त, वैसे भी कम थी, ईद भी था, और झुर्रियां उसके चेहरे पे. मुझे इतना तरस आया उस पर, मैं गाड़ी रोकी, मैंने अपनी सारी ईदी उसको दे दी. अब ये बताना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये नेकी है, लेकिन मैं बता इसी रहा हूं क्योंकि अगर मैं ना बताऊं, जो सबक सिखाना वो उससे बड़ी नेकी है. क्योंकि हफ्ते बाद मुझे फिर नजर आया हो गई कैंट में किसी और के साथ. वो कर्नल साहब को रोका, कर्नल साहब वाकिफ थे. कर्नल साहब को मैंने कहा कर्नल साहब ही इज अ फ्रॉड. उन्होंने उसको पैसे दिए, उन्होंने कहा भाग जाए यहाँ से. फिर गाहे बगाहे मुझे हर महीने कोई साल 2 साल बाद वो कहीं ना कहीं नजर आता रहा. आखिरकार मैं उसको पहले दड़ियां देता था, उसके बाद मैं उससे मिलना चाहता था. मैं कहा यार की गल की है, आई वांट टॉक टू यू. उसके बच्चे जवान हो गए, मैं उनसे मिलता हूं. बेटी मैं तेरा प्योर नस गया, मैंने वेख के की हाल है तेरा, वो यार छोटा हो गया तेरा. आई मीन गप्पे लगना शुरू हो गई. व्हाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज ही डजंट रियलाइज इट. ही हैज टॉट मी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन्स ऑफ माय लाइफ. मैं ये सोचता था कि यार मैं झूठ बोल रहा हूं, ये भी झूठ बोल रहा है. मैं एक्टिंग कर रहा हूं ना, वो भी एक्टिंग कर रहा है, बल्कि वो मुझसे अजीम है. मैं कहता हूं टिकट खरीदे, अंदर आए, फिर मेरी एक्टिंग देखें. यानी कि मैंने नोट वखा, मेरा मूड बने, ठीक है. और वो कह रहे हैं देखिए मैं एक्टिंग कर रहा हूं, आपको आपकी मर्जी, आप रोकें, पैसे जितना मर्जी दें, ना दें, वो तो अजीम इंसान है. आई रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड मी इज द इंटेंट. नियत है. इफ आई एम लाइंग टू डिसीव यू, दैट्स माई इंटेंट, एंड दैट इज नॉट नाइस. If my intent is even just to make money, I do not regard that as a great intent. But if my intent is to relax you, relieve, दुनिया की बहुत टेंशन मैंने मजाक कर दी है, और make you think and reflect or feel, which for me are the 2 greatest measures. कोई भी कहानी, कोई भी कोचिंग, कोई भी क्लास, कोई भी टीचिंग, कोई भी एक्टिंग, कोई भी पेंटिंग, कोई भी चीज, 2 चीजें जब उजागर करती है ना, उसने अपना हक अदा किया है. इमोशन एंड थॉट. It provokes emotion and thought. ये दोनों चीजें करते हैं, कहते हैं वाह. क्योंकि ये सारी चीजें जो काम मैंने लिस्ट की है ना, even a good therapy session, good coaching session, good ones begin after the end. कहानी खत्म हुई, उसके बाद आप सोचना शुरू करते हैं यार वो क्या था. That's the sign of a good session. That is good art. That is good acting. Otherwise it's not. I'll give you one more quote. Again, a great gentleman, मरहूम अल्लाह को जन्नत नसीब फरमाए. He was a great scholar. उनकी आज भी वीडियोस लगती हैं कहीं ना कहीं केबल्स पे. मॉल टाउन में रहते थे, और उनसे किसी ने पूछा कि क्या शख्स को एक्टिंग करनी चाहिए कि नहीं. उन्होंने कहा नहीं. उनसे पूछा क्यों. उन्होंने कहा क्योंकि अपनी शिनाख्त बंदा भूल बैठता है. यू बिकमिंग समवन एल्स. यही किस्सा फाखिर साहब ने शेख इब्राहिम एस्कोस खेटमा, जो उनके उस्ताद साउथ अफ्रीका से आए, उनको बताया. शेख साहब सूफियाना है. उन्होंने कहा इंसान अपनी शनाख्त खो बैठता है. जी. कहते हैं फाखिर साहब तो फिर हम सबको एक्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम सबको अपने ईगो को किल करना आना चाहिए. सो आई वुड से यस, वी ऑल शुड बी दैट एक्टर विद गुड इंटेंट एंड किलिंग योर ओन ईगो. दैट्स व्हाट वी से. जी. वालेकुम सलाम. सर एक क्वेश्चन तो मैं आपकी बात से कंटिन्यू करना चाहूँगा. आपने मतलब झूठ के बारे में कहा कि एक्टिंग इज अ काइंड ऑफ लाइफ. तो क्या हमें किसी जगह झूठ बोलना पड़ रहा है, और वो इसलिए कि अगला बंदा उससे हर्ट हो रहा है या नहीं, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? एक है कि हम इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि वो हर्ट ना हो. दूसरा इसलिए भी बोल रहे हैं कि समटाइम हम सच बोल जाते हैं और वो उससे अगला बंदा हर्ट हो जाता है. इन सिचुएशन में क्या करना चाहिए? Awais, thank you, but it depends on situation to situation, and it's your choice. Your answer is it depends on your intent. पहली बात.
सो दैट इज द बेस. आपकी इंटेंट के ऊपर है कि आपका मकसद क्या है. झूठ से आप कुछ हासिल करना चाह रहे हैं या झूठ से आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तवज्जो अगर आपकी कंट्रीब्यूशन पे है और बेलॉस है, इट बी फाइन. लेकिन हासिल कर रहे हैं तो फर्क है. दूसरा होता है कि मैनर. अब मिसाल के तौर पे मेरा दोस्त है, अभी अभी स्टेज से उतरा है, ठीक है, मेरा दोस्त है अभी अभी स्टेज से उतरा है और उसने काम किया लेकिन कोई अच्छा काम नहीं था. कहता कि यार वैसे मुझे बताओ कैसा है. आई वुड से बी ऑनेस्ट विद योर फ्रेंड. अ ट्रू फ्रेंड, अच्छा रफीक वो है जो कि जेन्युइनली ऑनेस्ट होगा उसकी भलाई के लिए. बेशक उसने गलत किया हो, वो कहेगा तुम गलत कर रहे हो. नाउ दैट इज नॉट अ गुड टाइम टू से दिस टू. दिस मे नॉट बी अ गुड टाइम टू से दिस टू. सो इस पॉइंट पे कहेंगे यार यू डिड अ ग्रेट जॉब, great effort, well done. But then you'll wait for the right time to say it to him. Second is the manner. Manner is very important. हम लोग कहते हैं कि यार मैं कोई डरदा डुरदा नहीं, मैं उन्हें सुनाया. ये कोई ब्रेवरी नहीं है. आपने शायद बदतमीजी की होगी या किसी की I mean, you've broken someone's heart, really, which is really harmful. मेरे नजदीक तो उसका कोई खुदा भी माफ नहीं कर सकता, तो हम कौन है, right? So we need to forgive other people. But उसमें I'll give another story. एक रियासत थी जिसमें बादशाह सलामत कोई ख्वाब आया और उन्होंने कहा कि यार बड़ा अजीब सा ख्वाब था, मैं चाहता हूँ इसकी कोई तशरीह को पता चले कि भाई क्या है. तो फिर वो एक बुलाते हैं किसी अजीम को, उन्होंने कहते हैं यार आप बताएं ज़रा इस ख्वाब की ताबीर कुछ बता सकते हैं. उन्होंने कहा जी बादशाह सलामत बताइए, ख्वाब बयान करें, आपने क्या ख्वाब देखा. कहते मैंने ख्वाब देखा ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ और उसके बाद एक एक करके मेरे सारे दांत गिर गए. कहते बादशाह सलामत ये तो बहुत बुरा ख्वाब है. क्या मतलब. बादशाह सलामत आपके सामने आपके सारे रिश्तेदार एक एक करके मर जाएंगे. बात उन्होंने सही की लेकिन उनको अच्छी नहीं लगी. उन्होंने कहा यार इसको तो अंदर दफन करो ना, कोई और बंदा भेजो. फिर किसी और बंदे को भेजा. अब वो भी सच बोलना चाह रहे थे, उनको भी इल्म था. उन्होंने कहा बादशाह सलामत ख्वाब सुनाए. बादशाह सलामत ने ख्वाब सुनाया. उन्होंने कहा ये हुआ ये हुआ ये हुआ, फिर एक एक करके मेरे सारे दांत गिर गए. उन्होंने कहा ख्वाब की तशरीह तो वाकई है ये लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहता तो मैं क्या करूं. उन्होंने कहा बादशाह सलामत ये बहुत अच्छा ख्वाब है, बहुत ही अच्छा ख्वाब है. अच्छा क्या मतलब है इसका. बादशाह सलामत आपके पूरे रिश्तेदार में सबसे लंबी उम्र है आपकी. इट्स हाउ यू से इट. यू डोंट वांट टू ऑफेंड द पर्सन. इफ आई रियली वांट समथिंग गुड फॉर यू, आई विल से इट इन द राइट मैनर एट द राइट टाइम, ताकि इट इज गुड फॉर यू. आप यू डूइंग फिजियोथेरेपी, राइट? Will you ask someone to immediately go to level 3 in terms of movement when their knee is not bending? No. You will go gently, build a rapport, relation, etc., and go slowly, steadily. And when the right time comes, they say, come on, push, push. You will push them to their pain for the benefit. So that's the answer to your question. Thank you, sir. अच्छा सर, second question ये है कि Can I take another question first, and then maybe if you have time, we'll come back to it. सर मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये कि हमारे ना इंडियन आजकल बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर्स हो गए. आई थिंक ये बहुत बड़े एक्टर्स, बहुत बड़े ड्रामेटिक कोई बने. तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पर्सन आपकी गरीब तो वो बाकी आपको मैनिपुलेट कर रहा है या वो बाकी सच बोल रहा है. मतलब कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इन लोगों ने ना फैलाई है एक्सट्रीम में. तो इस बारे में आप मतलब मैनिपुलेटर्स लोगों के बारे में क्या कहते हैं. आपका नाम? Manu, it's a very generic question, right? It always has been the case. If there's anything different in your generation compared to I'm zillennials, last of Gen X, anything different is that कि जो सतही element है वो इतनी राइज हो गई है कि आप Instagram feed पे देखते हैं कि शख्स कैसा होगा और वो सच नहीं होता necessarily, right? It's not necessarily the truth. So that has become a bit too large a scale. But otherwise, it's always been the case. People have always done that. Frankly speaking, there's no one fix answer to this. Of course not. You will get manipulated. I'll get manipulated. Anyone who's very good at understanding people will also get manipulated. It's okay. The only thing I'll say is this. Class 6 में, again, Dubai College, मेरे दो दोस्त, Nicholas Biris, Greek, Vikram Jethwani, Indian. ये मेरे best friends. और क्लास 6 में अली अंजरूती हमारे जो टीचर थे, सीरियन टीचर, उन्होंने कहा था चलो ट्रस्ट एक्सरसाइजेस सिखाएं. How many of you have done trust exercises? Trust exercise की है किसी ने? Do you know what that is, right? Standing straight, close your eyes, fall back. और कोई पकड़ेगा आपको. Do you trust them or not? Try it sometimes, okay? But I'm giving you the story for warning also. तो हम 3 थे. उन्होंने कहा ठीक है तुम तीनों में से कर लो. मैंने कहा ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स हम 3 हैं. मैंने कहा ओके गाइस, I'll go first. मैंने किया तैयार, पीछे गिरा हूं, गडर्स
और जैसे मैंने कहा कि आई वाज द क्वाइट बॉय, राइट, और मेरा राणा जागा और मैंने सुनाना शुरू कर दी। अलियान जरूरी आया, आई यू ओके उमर, आई यू ओके, आई वाज लाइक उस वक्त ओके शो के छोड़े, मैं सब दोनों को सुना रहा हूँ और मैं उनको सुना रहा हूँ एंड दे से सर कैन यू प्लीज स्टॉप हिम, व्हाई इज ही टेलिंग अस ऑफ, वी weren't ready, he just fell. Said no, you said you're ready. No, we were about to get ready. We said we were ready, but we were about to get. Mr. Aliyan Zaruti ने कहा let him. अब सुनो इससे, उन्हें क्यों? Because he showed trust in you and you betrayed it. Had he not shown trust in you and he was yelling, I would stop him. But trust तो करो. First trust. This is why I say to everyone, I will bitterly disagree कि आपने वोट किसको दिए, लेकिन I will die for your right of voting. क्योंकि वोट डालोगे तो तुम्हारा हक है ना बोलने का, वोट ही नहीं डाला फिर फायदा. So vote, for example, make your contributions and then hold someone accountable. So अगर आपने क्या manipulate कर रहे हैं, relationship है, give it some time, give it some ease, don't rush into it, go slow, आहिस्ता. I know you guys are the generation of home delivery and everything. Go slow. हमारे एक प्ले में था, उन्होंने कहा था कैरेक्टर की क्या खूबसूरत लाइन थी, वो मछली फरोश होता है और वो ही इज ट्राइंग टू वू दिस गर्ल, वो कहती कम ऑन लेट्स गेट इनटू एक्शन. वो कहता नहीं आहिस्ता बीबी जरा सलाम दुआ करें पहले. और उसने खूबसूरत लाइन की, कहते हैं फास्ट फूड खा खा के ना हल्की आंच का जायका ही भूल गए आप लोग. सो गो स्लो एंड सी टेस्ट ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टांस सिचुएशन, राइट. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना कि गुस्से में देखो किसी को, सी हाउ दे आर इन दैट सिचुएशन. It's a psychological fact in a relationship. Spend at least a year and a half, because that's when all the tides go up and down, hormones, as well as seeing people in different circumstances. Then decide कि हाँ ये किस तरह का दोस्त है, नहीं है, क्या है, whatever. Test them out also. See the situations. But you cannot hold someone accountable if you haven't even tested. You understand? I hope that helps. Anu. Ji. Walaikum Assalam ji. My name is Aliza Hassan and I'm a student of 4th year from Department of Eastern Medicine. Is that Aliza? Aliza. Aliza. सर मेरा सवाल ये है कि जैसे भी आपने हमें बताया कि किस तरह हमारे पेरेंट्स जो है हमें हमारे बेस्ट फ्यूचर के लिए बताते हैं, गाइड करते हैं कि इस स्ट्रीम में जाना चाहिए, अभी ये करो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में. और हमारा टॉपिक भी यही है एक तरह से कि हम किस तरह बैलेंस करें हमारे पैशंस को और हमारे प्रोफेशंस को. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को फॉलो करते करते अपना वो पैशन कहीं भूल जाता है या उसको छोड़ देता है. कभी कभार हमारा इस तरह से है. तो आपको क्या लगता है कि जो वो छोड़ देते हैं उस चीज को, वो करना चाहिए या अगर उसको वो लेके चले तो ऐसे क्या स्टेप्स वो लेके चले? फिर दूसरी बात है कि ऐसे मौकों पे जब हम डिस्कस कर रहे थे पेरेंट्स के साथ, अगर वो वांट टू मेडिकल, ठीक है, मुझे किसी और फील्ड में जाना है, सो वी डू हैव क्लैशेस विद देम एज वेल. बहुत कम मतलब पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं आपके पैशन और तो ऐसे में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? Lisa, this question been asked to me multiple times at different times. Thank you for asking. I wish when the parents are here, I talk to them about them. When the students are here, children are here, I talk to them about them. Obviously, I'm not asking to raise a rebellion. I mean, at least not against the parents. But I would like to raise a rebellion inside you. उसको address करूँगा मैं. तो पहली बात तो ये है कि first you need to know yourself. और उसके बहुत मुख्तलिफ तरीके हैं. I'll give you a question. If society and money was not an issue, imagine आप इतने अच्छे सोशलिस्ट स्टेट में रहते होते, राइट? जो फैज सोचते थे, जो मियां इफ्तिखारुद्दीन सोचते थे, आप एक सोशलिस्ट इस्लामिक स्टेट में, डेमोक्रेसी में रह रहे होते, where society is not an issue, money is not an issue, and you have the free hand to do something for a living. What could that be? Something we have to do. So think about that. That is closer to your own identity. Now, you happen to be doing something else as well, that's okay. That's all right. Who says you have to do one thing in life? I'm your living example in that. I did not choose to do this, by the way. I was brought to do this. But then I realized, waki, one doesn't have to do it. But if you wish to do it, please do it. I respect those who have the clarity at some point in life, कि हाँ यही मैंने करना. Good. Now, relationship to parents. Parents का perspective मैं आपको समझा दूँ. There can be multiple aspects. One, we've seen the world. We know what it's like. And therefore, our experience, we've learned, damn it, had I known this earlier, I would have said, someone should have told me this. So I'm going to tell my child this. अब वो क्या है,
I'm leaving it to interpretation. Sometimes it's out of fear. Sometimes it's out of fear. And I say this to all adults, you're adults as well. दो बुत तोड़ने आपने, खौफ और लालच. ये दो बुत जानने. और ये बार बार आएंगे. It's all right. एक दफा नहीं टूटता, बार बार तोड़ना पड़ता है. खौफ और लालच. It makes you do something inappropriate every time. It's made me do anything inappropriate. It's made everyone do something inappropriate. Khawf or lalach. And that happens. So there may be something from fear. I can tell you as a parent, the moment you know you have a child, which includes pregnancy for women particularly, men are pretty stupid at that. The moment you know you have a child, you become darpok. I phrase it this way. जब आपको पता चल जाए ना, और ये मैन की तरफ में इशारा ज्यादा कर रहा हूं, जब आपको पता चल जाए ना आपकी जिंदगी में कोई ऐसी शख्सियत है जिसके लिए आप जान दे सकते हैं, एकदम से आपकी जान कीमती हो जाती है. क्योंकि डर लगना शुरू होता है. अब उस खौफ में फिर आप क्या क्या फैसले करते हैं. आई गेव अप माई थिएटर प्रोडक्शन कंपनी. रास्ते में मैं दोस्त से बात कर रहा था इत्तेफाक से. मैंने कहा यार समटाइम्स आई रिग्रेट आई शुडंट हैव, बट आई एम ग्लैड आई डिड इट. Why? Because I had to run the kitchen. वही वाली बात. I had to run the kitchen. बच्चा बड़ा हो रहा है. कोई सेविंग करनी है यार. What do? I had to give it up. It was fear. Had I surpassed the fear, my theater production company would have been huge by now. That's the only regret. But ठीक है, I wasn't ready for it. Allah Mia, thank you. Now I'm ready for it. You know? So you have to understand where they come from as well. It is crucial for you to empathize. बार-बार आ रहा है. With the other person. And I can assure you, in the weirdest way also, from the cruelest parents that I've met, who genuinely care about you, not the ones who don't care about you. They do care about you. And they manifest in a very different way. That's what they do. So, अब बात ये है कि जब जलेबी खा ली, डिग्री आ गई, फिर आप वो कहना जो आपको दिल चाहे. सीधी सी बात है. But then thrive. क्योंकि bottom line, this is my last line. Bottom line ये, a parent wants nothing, a genuine parent, caring genuine parent wants nothing more than my child to be a good human being, to be happy, to be truly successful as a human being. इससे ज्यादा एक वालिद को या वालदा को कुछ नहीं चाहिए. अगर उसको बहुत मशहूर और मालदार डॉक्टर बनाने के बाद देखा कि वो साइकोटिक हो गया, तो बाप और माँ ही टूटेंगे. Right? So please understand. This is what I say to the parents also. Thank you. हमारे फिजियोथेरेपिस्ट अवैस का है. इसमें क्रेटीन भी है और गोंद कतीरा भी है. Just thought I'd let you know. I'm going through some rehab. वालेकुम सलाम. आयशा. मेरा सवाल आपसे ये कि हमारे कल्चर में ऐसे नॉर्म्स है जिसके अंदर ड्रामा को और आर्ट्स को इतना अच्छा नहीं समझा जाता है, इसके अंदर टैबू कंसीडर किया जाता है. तो वो नॉर्म्स को कैसे तोड़ सकते हैं? बिसाइड दिस टीजीसी ने ऐसे बहुत से रेगुलेशन पॉलिसीज बना दी कि आईटी होनी चाहिए, डिफरेंट लैंग्वेजेस होनी चाहिए, पर आर्ट्स को क्यों नहीं कंसीडर कर रहा है? Thank you for saying that. Aisha, thank you very much. You should become my lawyer, right? एक सेकंड वो जरा हजरत. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. सब खैरियत है ना? सब खैरियत है? अफसर है कि नहीं सरकार तो जाना है. कार तो नहीं फोन आया कि दही लेने आना. आयशा कुछ कहनी थी इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा. सॉरी. आयशा, you can please sit down. आप बैठे हैं. You're now talking about what all good young people talk about is challenging the system. Guess what artists do? We challenge the system. So you're one of us already. All societies, I'm giving you the bigger question, answer now. All societies, anthropologically, sociologically, एक हिसार बनाते हैं कवानीन के मुताबिक, नॉर्म्स, whatever. हर सोसाइटी के अपने कोई ना कोई नॉर्म्स होंगे और किसी भी एक वक्त में, दो वक्त में वो एक नहीं रहते. सेम सोसाइटी, दे कीप चेंजिंग. ऑलराइट. पर्शिया ले लें. पर्शियन लैंड, ईरान नहीं था, पर्शिया था. राइट. अफगानिस्तान पार्ट ऑफ अस, पार्ट ऑफ पर्शिया एज वेल. हिंदुस्तान ले लें. राइट. लाहौर ले लें. चलें लाहौर ले लेते हैं. लाहौर महाराजा रंजीत सिंह टाइम, लाहौर मुगल टाइम. मुगल में भी मुख्तलिफ, अकबर के वक्त फ़र्क, उसके औलाद के वक्त फ़र्क. लाहौर जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुआ, जिन्ना साहब का फ़र्क, ज़िया का फ़र्क, भुट्टो का फ़र्क, ऐतकी का फ़र्क. एक चीज़ कांस्टेंट है, वो अलग बात है.
but everything, norms change. So these are, and they reflect in the laws many of the times. Laws also reflect that, just not just this unwritten law, but it's the written law that reflects it. And then people challenge those questions. What is this norm? I am a student of economics. Economics also is a bound. So artists always challenge that question. Artists are the leftists. जब सोसाइटी में लेफ्टिस्ट्स कम हो जाएं, जो हमारी सोसाइटी में हो गया है, तो फिर हम क्या करते हैं? बस ठीक है जी, जीना है क्या, मारी जाओ, 400 का हो गया पेट्रोल, ओहो सेल्फी ले ली है, वी डोंट चैलेंज इट, राइट? प्याज महंगे हो गए, ओहो चल ठीक है, वी जस्ट मूव ऑन, नो वन चैलेंजेस इट, as opposed to the leftists in Turkey, in Lebanon, in Israel, even in Israel, by the way, the leftists have gotten onto the streets. 5 हैं, वो भी स्ट्रीट पे आ गए, बाकी सारे कह रहे हैं गजा में जो हो रहा है सही हो रहा है, वो कह रहे हैं हम नहीं मानते, वो आ गए स्ट्रीट पे, उनको लाठियां पड़ रही हैं, बट दे कम. एंड ईरान, द लेफ्टिस्ट विल कम, दोज हु चैलेंज क्वेश्चंस, दे विल कम, दे विल स्पीक अप. वी डोंट. We need to keep the leftist element alive, and we need to teach them how to do this. वो वाली बात, वो जरूरी नहीं है तोड़ फोड़ करनी है, गुफ्तगू करें, बहस करें, मुबाहिसा हो. मुबाहिसा इतना खूबसूरत लफ्ज़ है, और वालिदैन क्या कहते हैं, वो बहस ना करिया कर. No, we need to. So मुबाहिसा एक बहुत अच्छा जामा है. So when you're saying why does this not happen, good. Let that be the subject of a debate that you guys hold, and that you should be actually against the motion, ताकि आपको empathy हो कि क्यों होता है. You'll be forced to think the other side, right? People who said कि constitution खैर की ऐसी की तैसी, I had to speak कि yes ऐसी की तैसी, although I believe कि नहीं constitution की ऐसी की तैसी. भाई constitution is a very important thing, I genuinely believe it, but I had to think the other way. But you debate genuinely, not to win, but to share knowledge. That's the important part. अब वो HEC ऐसा क्यों करता है? Because that's part of the policy that's coming down. Simple. When you question those policies and build enough momentum and see the benefit, quantify the benefit, make the arguments, keep at it, keep at it, keep at it. You, maybe someone else reaches that position of decision, may say, you know what? We need to have humanities and arts in this as well. And then all of a sudden you realize, oh, haan, we should do it. And that, you just keep at it. I will say this much. आपका काम बदलना नहीं है. आपका काम है उसमें अपना हिस्सा डालते रहना. That is your job. From birth to death. You make your contribution like the Ababil. Putting out the fire is his job. Okay? So you keep questioning it. We're in the same school. We believe in the same idea कि yes, ये होना चाहिए. नहीं है, तो नहीं है. Right? जी. Sorry, आपका नाम मैंने मिस कर दिया? अरीज. जी अरीज. राइटर के लिए दोनों जरूरी. सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन आपका मकसद क्या है एक्सप्रेशन का, ये आपको देखना होगा. सो इफ योर्स इज आई जस्ट वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई डोंट केयर who's watching, who's listening, that's not important to me. I partially actually disagree with that. I'll tell you why. Because if you want to do that, just write a diary and then burn it, which is also okay. It's journaling, it's therapeutic, it's very helpful, but it's not the solution to your problem, right? If you are doing it for any audience, एक शख्स भी, वो शख्स आपकी जहन में होगा जरूर कि जब वो पढ़ेगी या वो पढ़ेगा, whatever, तो फिर मैं उसके साथ, आप unconsciously you'll be writing for that. So do it. So even if you are unapologetic like Manto or Fez, right, or Habib Jalib, you're unapologetically brave with your art, what you're writing, right? But you know who you're writing for, and you write that way. If you are becoming on the complete other spectrum, जिससे मुझे बहुत नजरियाती इख्तलाफ है कि मेरे भाई ये बिकता है, वो बिकने का तो बहुत बकवास भी बिकता है, तो मैं वो भी कर लूं, you know? So you don't do that. I do not encourage people to be completely market driven. I encourage people to have the integrity of your art in that market driven. And many times, I'm a Shakespearean actor, many times I've quoted Shakespeare. Shakespeare कोई इतना चालाक राइटर था, कमाल राइटर था. Hamlet मैंने मिसाल के तौर पे किया. Hamlet is one of his greatest artworks. Hamlet में you've got
really crass, excuse my language, but almost pornographic language. I did not know this. इतना है, क्योंकि जी ये जो है इनको भी तो सर्व करना है, फिर वो stupid humor भी है, फिर वो action भी है, you know, you've got all that, you've got murder and mystery, you've got ghosts and spirits, वो भी है, लेकिन उसमें to be or not to be, that is the question भी है. Frailty, thy name is woman, ये भी है, right? Life is but a walking shadow, Macbeth में भी है. So he gives you that as well. So at the same time he's entertaining and elevating, because वो humanity के तह तक जा रहे हैं. So do that. It's a smart business strategy. I hope that answers your question comprehensively. Assalamualaikum. I'm Zainab Asif from Biotech Department. So I wanted to ask a question that how did you deal with your rivals? Means bear them, ignore them, or conversation करने में वो मतलब होते नहीं हैं, conversation तो कर नहीं सकते उनके साथ. तो कैसे ignore करें तो कैसे करें? I'm sorry, I missed that. How did I? Deal with your rivals. Rivals. Yes. Oh, मैं याद करूं मेरे rivals हैं कौन? जैसे मैंने कहा, I'm the ठंडा राजपूत. So I generally don't take things too much. मुझे बताया जाता कि उमैर भाई आपके साथ बड़ी जाती है. मैंने कहा अच्छा, I get it, you know. A problem is a problem when you define it as a problem. Otherwise, it's not a problem. Yes, which doesn't mean that you will not have rivals. I have rivals. मौला अली का कॉल है कि जिसकी दुश्मन ना उसे डरो. Because it means you don't stand for anything. Yes, I've stood for things and I found people who stand with the absolute opposite things. When it is the issue, I address the issue. I don't want it to be the person. But then if the issues का अंबार और value map ये नजर आ रहा है कि यार ये शख्स complete different element में, maintain my distance, respectful distance. I will never, this is the one thing though that I've learned from my parents, and my father has done it every time, never ever disrespect anyone. Ever. You please realize that even your rival is there sent to you for your betterment. It's a reminder. उसको भी आप ये इज्जत दें कि ये हुआ है. Unfortunately, मेरे साथ ये भी हो गया because of all this empathy talk that I did. I studying psychotherapy and whatnot on my own. मुझे थोड़ा सा समझ में भी आना शुरू हो गया कि लोग ऐसे क्यों हैं. अब जैसे मैंने सर्वर की मिसाल दी है, खबीस हरकत कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों है? I've understood it. Does it make me forgive him for it? No, of course not. The action is wrong, but I can understand it. Do you think it's justified? No, but it's understandable. Yes. So I treat with my rivals that way. And when it comes personal, then I would like to have a conversation. There are probably 3 or 4 people that say, okay, I would like to have a word with you. That's it. Life is better that way. क्योंकि किसी ने मुझे एक दफा गाली दी और मैं याद करता रहा हूं, तो उसने तो एक दफा दी है, मैं 100 दफा अपने आप को दे रहा हूं. So I'd rather not. Life is much better than this, and you should move on that. Thank you. Thank you.